Good morning, friends. Let's continue with our topic, the subaltern history. Next, Mahatma Phule unfolded the story of Shudra the Shudra communities of his book uh, Gulamgiri. It drew attention to the exploitation of women, Shudras and Adishudras, done under the name of religion. हमको पता है caste system was one of the extremist uh, thing that we suffered a lot in Indian culture and the history of India. इंडियन हिस्ट्री में जात सिस्टम मतलब इतना बहुत बुरा सिस्टम था, उतना ही बुरा था. सो ये सबसे नीचे का लोगों को बारे में लिखने के लिए कोई नहीं था. सो द पीपल स्टार्टेड टू राइट लाइक महात्मा फूले राइट अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन. उसने कैसे टॉर्चर किया है शूद्रा और आदिशूद्रा लोगों को, और गर्ल्स को भी और विमेंस को भी कैसे टॉर्चर किया है उनका बुक में मेंशन किया है. वो बुक का नाम है शूद्रादि शूद्रा. And the terms Shudra and Adishudra indicates the bottommost ranks of the caste system that we know about. The role of the people belonging to the Dalit caste is very significant in the shaping of the various cultural and political aspects of India. इंडिया की कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स फ्रेम करने के लिए दलित कास्ट का एक रोल मतलब बहुत बड़ा है. एंड हाउएवर देयर रोल वाज नॉट डूली एक्नॉलेज्ड इन ए कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. लेकिन उस लोगों का वर्क नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में और कॉलोनियल हिस्ट्री में एक बार मेंशन भी नहीं किया था. सो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन द फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट. Two of his books, Who Were the Shudras and the Untouchables, may be cited as an example of the history of subaltern type. So डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ने भी दो बुक्स लिखा है. फर्स्ट वन इज हु वेयर द शूद्रस एंड द सेकंड वन इज द अनटचेबल्स. बोथ आर मेंशनिंग अबाउट a good example of the untouchables or the shudras or the shudras. That's all about the subaltern history. And next we are moving about the feminist history. Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in writing of Indian history. As a result, the role of achievements of women in history remained neglected. To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writings of women. It was also necessary to rethink of women position in history. So जो टाइम में विमेंस को ज़्यादा राइट्स नहीं था, इवन इफ दे आर इन हायर क्लास और लोअर क्लास. विमेंस हाई क्लास के हो और लोअर क्लास की हो, जो कुछ भी हो, उस लोगों को कुछ भी राइट्स नहीं था हमारा सोसाइटी में. सो हिस्ट्री में भी ऐसे जो स्कॉलर्स मेल स्कॉलर्स ने जो कुछ हिस्ट्री लिखा है उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है. सो द वीमेंस राइटर्स, वीमेन हिस्टोरियंस स्टार्टेड टू कम फॉरवर्ड. कुछ वीमेंस हिस्टोरियंस सोसाइटी में आया और उस लोग वीमेंस के लिए कुछ लिखने के लिए शुरू हो गया. एंड दैट इज़ कॉल्ड द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. उसको बोलता है फेमिनिस्ट हिस्टोरी और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. सो इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक द वुमेंस पोजिशन इन हिस्ट्री. एक बार फिर से सोचना है हमारा वुमेंस का सिचुएशन क्या है अभी हिस्ट्री में. Among women authors writings about women in the 19th century CE, ताराबाई शिंदे was the foremost one. उसमें सब very important person है ताराबाई शिंदे. She wrote attacking the male-dominated social system and the caste system. Her book, Stree Purusha Tulna, published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. In 1888, the book written by Pandit Ramabai was published and held the high caste Hindu woman. So, first Tarabai Shinde wrote a book that is called Stree Purusha Tulna, that was published in the year 1882. It was giving a pure image of the women's in India. And the high caste woman, how was the high caste woman, that is was explained by Pandita Ramabai in her book The High Caste Hindu Woman, that is published in the year 1888. So the feminist literature is one of the post-independence era concentrated on the issues of like unemployment of women, treatment method to their workplace, and their right political equality, etc.
Among the recently published feminist literature, मीरा कोसाबी बुक्स क्रॉसिंग दी थ्रेशोल्ड. सो ये जो फेमिनिस्ट लिटरेचर में बहुत ज़्यादा बारे में बता रहे. फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन. वुमन को काम करने के लिए राइट नहीं था, और अगर वर्क प्लेस में गया तो भी उस लोगों को कुछ इक्वलिटी नहीं था, एंड पॉलिटिकल राइट कुछ भी नहीं था. सो द मीरा कोसाबी इस बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड इज़ वन ऑफ द फेमिनिस्ट एसे इन हिस्टोरिकल सोशल हिस्ट्री. एक बुक है, बुक इज़ वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन दैट इज मेंशनिंग अबाउट दिस इश्यूज. And it contains essays of the life of the stories of like women Pandit Ramabai and Dr. Rukhamabai and the first practicing lady doctor in India. और उसमें कुछ लोगों को भी कहानी भी बोल रहे, लाइक फर्स्ट लाइक पंडिता रमाबाई की कहानी और रुखाबाई एंड द फर्स्ट प्रैक्टिस लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया. एंड ए लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्ड व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र. उस दलित वुमेन का भी बहुत ज़्यादा राइटिंग्स है. डॉक्टर शर्मिला रागेश वर्क इज नॉट वर्थी इन दिस कॉन्टेक्स्ट. शर्मिला रागे उसके भी वेरी राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज इंक्लूड्स हर एसेज ऑन दी ऑटोग्राफीज ऑफ दलित वुमन. दलित वुमन के बारे में बहुत ज़्यादा राइटिंग्स दिया है. द राइटिंग जेंडर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल एसे.